Thank you very much. So Baba says in Unity in Society, he says that in any society or social structure, unity among its members is indispensable. Otherwise, the structure will crumble down. So the lack of unity among the members of society because of the too much self-interest, जिसको हम कहते हैं आत्म सुख तत्व की बहुलता के कारण, in the individual members, formation of sects for economic or social advantages, lack of understanding of others, not only brings the downfall of society, Baba कहते हैं, but it also will wipe it completely from the face of the earth. Instances of so many sects and empires disappearing altogether are not rare in the history of the world. So, ये जो यूनिटी है ये बहुत आवश्यक है, अदरवाइज समाज में कई ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी समाज का एक सामाजिक जो संरचना है उसमें सदस्यों के बीच एकता अपरिहार्य है, बाबा यही कहते हैं, नहीं तो ढांचा जो है मानवता का वह ढह जाएगा। समाज के सदस्यों के बीच एकता की कमी, व्यक्तिगत सदस्यों में अत्यधिक स्वार्थ के कारण, आर्थिक व सामाजिक लाभ के लिए संप्रदायों का गठन, दूसरों की समझ की कमी न केवल समाज का पतन लाती है बल्कि इसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। पृथ्वी के मुख से इतने सारे संप्रदायों और साम्राज्यों को एक साथ लुप्त हो जाने के उदाहरण इस विश्व के इतिहास में दुर्लभ नहीं है। तो ये आज का मैं चाहता हूं कि इस बाबा के कोटेशन से इस डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। एंड यू नो दैट all across the world, for example, recent the Israel and Palestine war and long going war across the world like Ukraine and Russia war. So this indicates that human society unity is very important factor, and this I looked at only Proutist and neo-humanistic attitude people can give the rational solution. So can I request any one of you to raise your hands and speak on the subject? Madhusudhan Dadaji? It's a very broad topic. Yeah. And the interesting thing is, of course, as you said, there must be unity in the society. But Baba has also written in Ananda Sutram that diversity is the law of nature. So what we want is unity in diversity. Means we want unity, but we don't want to sacrifice the diversity in order to get unity. And that's been an attempt, actually, in some places. The attempt to create unity without diversity is what causes an unstable society. And what we're seeing in the Middle East is nothing new. It's sad to say. It's very sad to say that these kind of things keep cropping up from time to time. I was thinking about the situation between the conflict between the Palestinians and the Israelis. It's not that much different, at least to my outside point of view, from the conflict between the conflicts in India that have arisen due to cultural and religious differences. And most of these conflicts are artificial. They're created due to dogmas, due to historical sentiments, as Baba talked about, geosentiments, socio-sentiments. And all these things are historically rooted in history. It doesn't mean I don't mean to trivialize anything. You know, many people are dying and it's very sad and painful. But when we talk about how to
unify society, there can only be one common ideology, one common way of life, which means removing all the, eliminating all the dogmas and having a universal outlook on life. But we're a long way from that. And so unifying society maybe in the short term may not be possible, but in the long term, we can work on it little by little, every little thing we can do to be able to understand. And Ananda Marga is such a good example. We have people who from all over the world, people from backgrounds from all different cultures. We have people from all different religious backgrounds. And when we sit to do Dharma Chakra, we all sing Samga Chadwam together. We all meditate together. I don't mean to say that we have a perfect society. We have our differences too. But we have a unifying goal. And until there's such a unifying goal globally, we're going to keep seeing these kind of conflicts. And the best we can do is offer our universal perspective to the society and keep that universal perspective and not get dragged down into these petty, they're wrong, everybody's wrong and everybody's right. So it's a difficult situation, but it's important as Proudists and as neo-humanists, we keep our universal perspective and understand the real roots of these things and don't get dragged down into the petty differences that cause these people to fight with each other. As I like to say, you don't want other people's problems become your problem, because every one of us has our own problems. And if you take on everybody else's problem as your problem, then you have more problems. No, we should be there with solutions, not problems. Absolutely. Okay. Namaskar. Thank you, Madhusudhan Dada. So you rightly said that Anand Marg is a model of unity among diversity from across the world, more than 180 countries. And we do Sangha Chadvam together, though having different background of each country. So we have that unifying spirit. Something is there which is very common. So let us examine what synthesis and analysis means. The true spirit of synthesis lies in the establishing unity in diversity, as you told, on the basis of universal ideology. In uniting many diverse parts into a homogeneous whole, on the other hand, the very effort to split the one and indivisible whole into many component parts, that is the path of analysis. And the sociologists were aware of the fact that there are apparent differences among human beings due to environmental, physiological, geographical, and personal, depending on one's reactive momenta, differences. I say apparent differences, Baba says, because these differences are based on relative factors. Essentially, human society is one and indivisible. Now, if someone takes the advantage of these apparent differences and wants to divide otherwise individual human society, it should say that such a person has adopted the path of analysis, and this sort of psychology is anti-human. Human welfare can never be achieved by this path. और यही जो तरीका है, एनालिसिस का तरीका है, how to differentiate, we are looking at the black spot everywhere, which creates difference in society, and that is why we are here at this stage. तो जैसा अभी हम लोगों ने anybody else would like to speak, आप अपना हाथ उठा सकते हैं और आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. That freedom is here. So any one of you would like to say something on the subject, please. अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूं, आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
जैसा कि अभी हम लोगों ने नव्य मानवतावाद की बातों को पढ़ा था 2 दिन पहले का जो क्लास था, और आज जो समाज में जो प्रिवेलेंट है ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द सेल्फ सेंटर्ड, आत्म सुख तत्व से प्रेरित लोगों के कारण आज दुनिया में अशांति है। तो जो हम जानते हैं कि त्रिस्तरीय मूल्यों को लेकर के हमारा जीवन स्थित है। एक तो है सामाजिक आर्थिक पहलू, जिसके लिए भी समाज में लड़ाइयां चल रही हैं सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच की वजह से, और जो मानसिक बौद्धिक पहलू है साइको इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो होता है, जिसको हम दृष्टिकोण कहते हैं, इसमें भी डिफरेंस होने की वजह से तमाम लड़ाइयां, द मेनी वार्स आर बीइंग फॉट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज द रिलीजियस, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक बोधि पहलू, उसका बहुत क्षुद्र पार्ट है जिसको हम रिलीजन कहते हैं। सो थर्ड जो है हमारा अस्तित्व है स्पिरिचुअल इंट्यूशनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं, या स्पिरिचुअल फिलॉसफी के थ्रू, स्पिरिचुअल कल्ट के थ्रू, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो ये जो मानसिक गति के भी 3 पथ होते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दीज आर द मेन रीजंस व्हाई द वर्ल्ड इज डिवाइडेड एंड देयर इज अ फाइट अक्रॉस। सो एक होता है विवेक का पथ, द पाथ ऑफ रैशनैलिटी, द पाथ ऑफ कॉन्साइंस, which is missing. If it is there, this fight can be avoided. Then जो मेन कारण है या तो जमीन की वजह से है, या चैतन्य देव जी काइंडली स्पीक, थैंक यू सो मच, यू हैव रेज्ड योर हैंड्स and mute yourself, थैंक यू। नमस्कार एवरीवन, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जो अभी राजेंद्र दादा बात आप कर रहे थे, वही मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी कि बेसिकली व्हाई इज आई मीन व्हाई इज there a mental division between people, and why do they want to fight with each other? And if we look at the Prabhupada philosophy, it is about the equitable, not equal, but equitable distribution of the mundane resources among everyone. Let it be land, let it be other resources, keeping in mind that all these resources are universal patrimony, and all of us have to use it judiciously, and nobody should be kept at dearth of these things. So how to unite the human society? It's a very relevant question in today's day and age, and it has been relevant for quite some time now. And that is why Mahasambhuti Baba came with the idea of Mahavishwa, so that slowly and gradually people understand these values and try to have that vision of one and undivisible society. Baba said that human society is one and undivisible, but still there is division, still there are fights. Now the question is how to do that, how to unite it, basically. So if everyone has that consciousness, that conscience, that ye jo hamare whatever these resources we have, let it be land or whatever, these are our own patrimony. Now people who have these fissiparous who have these intentions of creating fissiparous tendencies among people are those who have their eyes on these resources. They create those issues which result in I think differences in people, where they think that someone does not deserve living somewhere, someone does not deserve to be as a even as a minority somewhere, someone does not deserve to live, and one religion is good, one religion is bad. So all these ideas are propagated in people's mind due to I think the various reasons, that they do not realize that what real difference between dharma and religion is. So these are my initial submissions. How to unite it is basically I think they should have we as the pioneers of Baba's ideology should propagate our idea
that nobody is inferior, nobody is superior, and all are VIP. Thank you. थैंक यू. थैंक यू चैतन्य जी फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सामाजिक आर्थिक पहलू, जिसमें हम कहते हैं कि हर में पिता एक साइकोलॉजी होना चाहिए, और वो केवल जो साधक हैं, जो सचमुच साधक हैं, उनमें ही आ सकती है. जब तक वो अपना एक्सपेंशन 360 डिग्री नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक साइकोलॉजी पे चलना होता है. वो पहली बात यही है. बाबा आज की समस्याओं का पहला सूत्र ही है, हरर में पिता गौरी माता स्वदेह सह भुवनात्रयम्. इसका मतलब है कि ये जो साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी कि everything is the patrimony of it belongs to God and we are his children, so we have a right to utilize it. Everyone have right, nobody have right to accumulate it or misutilize it. And basically जो हमारी मानसिक गति है, सारे झगड़े मनुष्य है क्या? मन ही मनुष्य है. तो ये जो हम कहते हैं कि गति के 3 पथ की बात करता है नियो ह्यूमनिज्म, हम अभी भी नियो ह्यूमनिज्म पर ही अटके हुए हैं. एक होता है विवेक का पथ, जो हमने बात किया. दूसरा है भाव प्रवणता का पथ, और जो भाव प्रवणता का पथ है वही इन सारे या मोस्ट ऑफ द झगड़ों का कारण है. और तीसरा है भक्ति का पथ. तो जो भाव प्रवणता है उसमें 3 बातें हैं. एक तो है जियो सेंटिमेंट, एक दूसरे के जमीन को हड़पने की जो होड़ है उसके लिए भी झगड़े होते हैं. तो जो इजराइल का भी जो वॉर चल रहा है, इसमें कारण कुछ भी हो, बट एट द बैक ऑफ द माइंड दिस जियो सेंटिमेंट इज वेरी स्ट्रांगली प्रिवेलिंग देयर. इसके बाद आता है सामाजिक भाव प्रवणता, सोशल सेंटिमेंट. तो सोशल सेंटिमेंट में जो अपने समाज के प्रति, अपने छोटे से समाज के प्रति इज्म आते हैं इसमें, चाहे वो नेशनलिज्म ही क्यों नहीं हो. तो इसको फाइट करने का तरीका है यू शुड, बाबा कहते हैं यू शुड अध्ययन होना चाहिए. एंड साधना के द्वारा यू हैव टू एक्सपैंड योर माइंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पिंच ऑफ अदर्स. यू शुड बी दैट सेंसिटिव इनफ. तीसरी बात आती है समान मानवीयता भाव प्रवणता, जनरल ह्यूमनिज्म. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर embedded in social sentiment and geo sentiment for what the fight is going on. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से मैं चाहता हूं कि कोई हाथ रेज करें और अपने विचार दें. So anybody else would like to speak on the subject? Yes, Meera Didi, thank you so much for raising hands. नमस्कार दादा, नमस्कार टू एवरीवन. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अभी हम लोगों का इस टॉपिक पे क्लास भी चल रहा था, न्यू ह्यूमनिज्म. एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज में आखिर ये कैसे हम लोग इक्वलिटी लाएं. तो सबसे पहले तो दो स्पीकर जो बोले कि हम लोगों का एक्सपेंशन ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है. स्पिरिचुअल जो भी होंगे और यम नियम का पालन करेंगे तो डिस्क्रिमिनेटिंग भावना नहीं होगा. या समाज में जैसा कि प्राउड में मेंशन किया गया है कि 4 वर्ण तो हमेशा ही रहेंगे, बट बिहेवियरल जो उनके साथ होना चाहिए आचरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और तभी समानता आएगी जब आपका बिहेवियर उनके प्रति उत्तम होगा, जैसा कि सबके साथ होता है. ऐसा नहीं कि वो निम्न कोटि के हैं या फाइनेंशियली वीक हैं या फिर जैसा भी देखे कि शूद्र प्रवृत्ति है या फिर वृक्क है या वैश्य है या क्षत्रिय है, बट आपका बिहेवियर सबके साथ एक समान हो और उचित बिहेवियर होना चाहिए. सम्मानपूर्ण बिहेवियर, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड ना किया जाए. जैसा कि अब इंडिया जैसे है, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी में यूनिटी होना चाहिए, लेकिन आज जो पॉलिटिशियन है वो बांट रहे हैं कास्ट में, संप्रदाय में, जाति में, देश में. तो अलग अलग भावनाओं से जो बांटा जा रहा है समाज को, इवन अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से में बट रहे हैं. तो इस तरह की भावना जब लोगों के बीच में हटेगा, और ये जब तक नैतिकवान
नहीं होंगे, पूरा समाज हम नैतिकवान नहीं होंगे और समाज में एक नैतिकता का भाव जब तक हम लोग डालेंगे नहीं, तब तक ये जागृत नहीं होगा। और इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा समाज में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर तैयार करना है तो शुरुआत हमें अपने आप से करना होगा। फर्स्ट अपने आप को देखना होगा। हमारे घर में जो हेल्पिंग हैंड आते हैं, जो छोटे छोटे वर्कर्स काम के लिए आते हैं, आपकी बिहेवियर अगर उनके साथ उत्तम होगी तो डेफिनेटली वो समझेंगे कि आप दूसरों से अलग हैं। और अगर उनके मन में ये भावना होगी तो इस तरह का एक मैसेज जाएगा कि जो अनमार्गी हैं या फिर जो यम नियम का पालन कर रहे हैं, या फिर अगर वो ना भी समझे, इतना तो जरूर समझेंगे कि ये दूसरों से अलग है। मैं अपने घर में देखती हूँ, जो मेरे घर में जो हेल्पिंग हैंड्स है उनके साथ मेरी बिहेवियर, और वो लोग बोलते हैं कि मैम मैं आपके जैसा बिहेवियर नहीं देखती हूँ, तो ये कहाँ से आया मुझे? मेरे गुरु पीआर सरकार, उनकी जो दी हुई शिक्षा, हम लोगों को जो 16 पॉइंट यम नियम का जो पालन करने के लिए सिखाया गया है, तो उन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे आचरण पे है। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, हमारे जो नेबरर्स हैं उनके पास वो एक हमारी बिहेवियर का मैसेज जाए, तब भी जा करके परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, और हम अपना जो बिहेवियर है समाज में जो दिखाएंगे उसका प्रभाव हमारे सोसाइटी में पड़ेगी, हमारे नेबर्स में सब जगह पड़ेगी, और उसका प्रभाव ही यही एक सॉल्यूशन है समाज में सोशल इक्वलिटी लाने की। समाज में जो लोग एक दूसरे के लिए उत्तम भावना रखेंगे, तो इसके सिवा और दूसरा मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता है। और दूसरा है पॉलिटिशियन नहीं, हमें ऐसा नेता तैयार करना है जिनके लिए समाज के प्रति उनका भावना हो कि हमें कुछ कार्य करना है समाज के लिए, डिवोशन समर्पण हो समाज के प्रति। तो ये सारी चीजें पहले हमें अपने घर से परिवर्तन लाना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। अदरवाइज सिर्फ ये कहानी की तरह रह जाएगी और कुछ नहीं। थैंक यू दादा। नमस्कार। थैंक यू दीदी। एनीबडी एल्स प्लीज? तो मैं बता दूं कि सॉरी इफ आई एम राइट, बाबा एक जगह प्रवचन में कहते हैं कि व्यक्तियों और समाज के विकास और समृद्धि को लाने का प्रयास करते समय, हम यूनिटी करते समय, हमें केवल विभिन्न समुदायों के बीच सामान्य बिंदुओं, कॉमन पॉइंट्स को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। वी हैव टू एनकरेज द कॉमन पॉइंट्स। मतभेद, द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन को वी हैव टू डिस्करेज। सो मतभेद के बिंदुओं को नहीं। यह स्वाभाविक है कि समाज में पहनावे, रीति रिवाज, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, खान पान, भाषा आदि को लेकर मतभेद हैं, लेकिन अगर मतभेद के इन बिंदुओं को अनुचित महत्व दिया जाएगा तो सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी और परिणाम स्वरूप विभेद बढ़ेगा। तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा यदि समकालीन समाज की गिरावट को रोकने के लिए तुरंत कुछ नहीं किया जाता है। तो विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप समय आने पर समाज स्वतः ही कुछ सामान्य सिद्धांत विकसित कर लेगा। अतः मतभेद के बिंदुओं को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि टुडे द कास्टिज्म, जिस तरह से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे ये खत्म हो सकता था, परंतु पॉलिटिशियंस ने इनको जिंदा रखने के लिए, इवन जो रिलीजियंस के जो डिफरेंसेस है उसको जिंदा रखने के लिए वो इसको हवा देते रहते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अदरवाइज मनुष्य जब साथ रहेगा तो अपने आप कुछ कॉमन पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करके, यदि उनको कोई भड़काता नहीं है, तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप समय आने पर समाज स्वतः ही कुछ सामान्य सिद्धांत विकसित कर लेता है और वो चैन से रहता है, क्योंकि बेसिकली दे वांट पीस, बट these politicians may be aggravating them to fight, and that is the reason also that most of the fight is going on today. तो सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं को समाज में मतभेद के बिंदुओं को उछालने से बचना चाहिए, बल्कि इन्हें लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि जटिल विभाजनकारी मुद्दों को सामने
लाने का यह उचित समय नहीं है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाओं का मामला लीजिए। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो भाषा के मुद्दे पर अनावश्यक रूप से लड़ते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे को उठाने का ये उचित समय है जब इतने सारे लोग भूख से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन से परेशान हैं, आर्थिक संकट आदि से पीड़ित हैं? क्या भारत के लोग भाषा के तुलनात्मक रूप से महत्वहीन मुद्दे पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं? आई मीन प्रायोरिटी तो होना ही चाहिए जो होना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें तुरंत शोषण के खिलाफ अभियान शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे विभाजनकारी ताकतें नियंत्रण में रहेंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विखंडनकारी ताकतें समाज में बाधाएं और असंतोष पैदा करेंगी और लोगों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे से मनुष्य के विचार को भटकाएंगी, अनसुलझे रह जाएंगे ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं आप काइंडली स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। कोई भी आप बोल सकते हैं। आई थिंक द सब्जेक्ट, इस पे मार्गी नहीं बोलेगा, प्रोटिस्ट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? यस दीदी, स्नेहलता दास दीदी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। यू कैन स्पीक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लें। स्नेहलता दीदी आप म्यूटेड हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर लें और बोलें। So anyway, anybody else can speak. I think Didi is not able to. राजेंद्र दादा आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको if you want. No, I can only ask to unmute, I think. Yes, I have asked her. Anyway. हेलो दादाजी, प्रणाम। Yes दीदी, yes दीदी, प्रणाम दादाजी, मेरा आवाज आ रहा है? Yes दादाजी दीदी, आ रहा है आपकी आवाज। हेलो, Yes, प्राउड दर्शन है। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि न्यू ह्यूमनिज्म कैसे इंग्लिश हो जाए तो ऑन है दादाजी। दे डू नॉट मैंने फॉलो दी philosophy of Anand Marg. They do not follow the Jamaniyam 16 thank you Didi, point. we understood your point. We understood your point. Thank you very much. You rightly Thank you, said, Dada. but the point is we have to see individually. यदि हम समाज को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हम कितने बदल रहे हैं। Yes, yes. Yes. So beyond that, I think we have, I mean, in public we don't have Yes. right to speak. Individually, we Yes. have to see that what I can do, how much I am doing, whether I am better than what I was yesterday. So this, Yes. for that there is a very 16 points. We have to guess ourselves, gauge ourselves, where we are, whether we are improving. So ये तो इंडिविजुअल है, और जब इंडिविजुअल बनेगा तभी समाज बनेगा, ये तो आप जानते हैं। Yes, yes, दादाजी। So we have to concentrate on individual, of course, society. But first, कहते हैं ना कि जो खुद ही गुड़ खाता है वो दूसरों को गुड़ खाने से कैसे मना कर सकता है? कैसे मना So सकते? Yes, दादा। we have to be correct ourselves first. Thank you, हाँ, दीदी। बहुत we are vital point है। Anand we are not united. We are divided. We are not following 16 point Jamaniyam. How to Didi, again, you are going on the same topic. We have to. You start following. People will follow. Your aura will be such that people will follow. If there is no unity, we are 30 people united here. We are here for discussing about the society. Yes, we have to improve. You rightly said we have to improve. We cannot outright say that there is no unity. Unity is there. We need to expand it. Thank you very much. Thank you, Didi. Wonderful point. Thank you, Dada. Dadaji, can you speak? I think what I wanted to speak about was related to what the previous speaker pointed out. Mm-hmm. And more or less it has been, I think, taken up by you, Rajendra Dada. But in addition to what you said, I think we are digressing from the topic, but I will take 2 minutes to just say that if somebody is ideological and there is a clear-cut idea of the, in the mind of the spiritual practitioner, then I think
he or she will not be able to see division in society. And by that vision, he will unify the human society. He or she will unify the human society, because the universal love will prevail in the heart, and that will do the magic. So I Absolutely. think rather than being analytical and crying about, the status quo, Yeah. we have to do so much beyond, the status quo, and we have to change it rather than, talking about it. Absolutely. Absolutely. एंड हम लोग यहाँ पर हैं अपने व्यूज रखने के लिए. वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइजिंग somebody, okay? And maybe today you can say that where it is making difference, but remember that maybe we sow the seed today, which may not give fruit now, but maybe after decades. So अपना प्रयास सही रहना चाहिए. I will make, and I think Madhusudan Dada was very clear. इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए कि across the world we are in almost 180 countries. When we come together, is there any feeling of separatedness? No, because our ideology is common. That is why, and we sing Sanchadwan together. So anybody else, please? नमस्कार दादा. नमस्कार दीदी. नमस्कार पूनम दी. दादा, दो बातें. क्या हमने अपने जीवन में कभी कोई प्रयास किया जिससे कि क्या रिजल्ट हुआ? तो मैं एक छोटा सा, अपने तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी नहीं कि बोलिए मैं दीदी, please, हाँ. मैं जब शादी करके गई तो एक नन्नागी परिवार में गई. वहां पे छुआछूत बहुत ज्यादा था. जो लोग घर में बर्तन धोने आती थी, उन लोगों का धोया हुआ बर्तन में लोग खाते नहीं थे, उसको दोबारा धोते थे. तब मैंने लोगों को बस समझाना शुरू किया. हालांकि उस वक्त वो बातें लगता था कि लोगों के सिर के ऊपर से जा रही है, बहुत प्रेस करके नहीं, बहुत प्यार से. लेकिन अभी 15-16 साल बाद मैं जब उस जगह पे गई तो मैंने देखा बिल्कुल चेंज हो गए हैं लोग. जितना हम लोग कल्पना नहीं करते उससे कहीं ज्यादा लोग चेंज हो गए. अब उन लोगों का बनाया हुआ लोग खाना भी खाने लगे. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने इनिशिएटिव लिया था 15-16 साल पहले, उस पे लोगों ने वर्क करना शुरू किया है और हमारी बातों का इतना प्रभाव होता है. एक बात दादा. दूसरी बात ये कि हम लोग समझाएंगे किसी को तब जब सामने वाला समझने की स्थिति में होगा. कुछ लोग तो जाग कर भी सो रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो सोए हैं उनको पहले कैसे जगाया जाए, ये मैं इस पे मैं बात करती हूँ. जो जगे हैं और वो क्या होते हैं, वो नखरा कर रहे हैं, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो एक अलग क्वेश्चन है. लेकिन जो रियल में सोए हैं, अब कोई दारू पी के घूम रहा है, आप उसको कुछ भी नहीं समझा सकते. किसी के घर में खाने को नहीं है तो आप उसको अच्छे प्रवचन नहीं दे सकते. तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है, मैं जो सोसाइटी में रीड करती हूँ दादा, प्रैक्टिकल में काम करती हूँ. बहुत थ्योरी तो किताबों में लिखी हुई है, वो काम नहीं कर पा रही है. इसके लिए हम लोग को छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना हो. तो उन लोगों की जरूरत क्या है, क्यों वो समाज से आइसोलेटेड हो रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास खाने को प्रॉपर नहीं है. तो हम लोग उन चीजों की पहले व्यवस्था करें और जो उनमें जो ये एडिक्शन की जो आदत है, इसको दूर करने पर वर्क करेंगे, तब हमारी बातें समझ में आएंगी. अदरवाइज अचानक से कोई मारपीट कर रहा है, आपकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल इंसेन हो चुका है. तो उसको हम प्रवचन कैसे दे सकते हैं? तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज पे जब हम वर्क करेंगे तब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा. और ऐसे तो भाषणबाजी हो तो हम सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये उन तक पहुंच नहीं पाएगी. और हमें जो सोए हैं पहले उनको जगाने का प्रयास करना है, ना कि जो जग करके और सोने का नाटक कर रहे हैं उन पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है. हम लोगों ने बहुत बार क्लासेस में जब दादा से क्वेश्चन किया था तो दादा ने यही जवाब मुझे दिया था और मैं उसी तरीके से काम करती हूँ. तो मैं वही आज सबके सामने कहना चाहती हूँ. धन्यवाद दादा. थैंक यू दीदी. जो जानबूझ करके जगे हुए सो रहे हैं उनको तो जगाना बहुत मुश्किल है. राइटली सेट. एंड यू राइटली सेट कि हमको कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ये तो पहला सूत्र है जहां से हमारा प्रवचन शुरू होता है. तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो अस्तित्व पे रहता है. यानी कि कुछ लोग अत्यधिक अमीर हैं, जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत गरीबी में डूबा हुआ है. स्वाभाविक रूप से एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता को काफी हद तक इक्विटेबल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. एटलीस्ट जो प्रौद कहता है फॉर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी एटलीस्ट गारंटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. और तभी एटलीस्ट लोग आपकी बातों को सुनेंगे. वरना आप भी जानते हैं कि पाप जो है दो कारण से होता है. या तो विपन्नता के कारण होता है, उसके पास कुछ है ही नहीं कल खाने को, एब्सोल्युटली ब्रेड चोरी करेगा. या तो विलासिता के कारण होता है,
मोर देन रिक्वायर्ड जब आप एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर आपका दिमाग निगेटिव वृत्तियों की तरफ ही जाएगा, सो दैट यू एंजॉय द सेंसुअल प्लेजर एंड यू वेस्ट योर मनी इन दैट। तो इसलिए दीदी ने सही कहा कि और मेन जो बातें हैं वो अशिक्षा भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो जो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ समाज की जो सामूहिक संपदा है वो भी बढ़ती जाए, तो इसके लिए हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है जो सामाजिक आर्थिक पहलू का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन का बात, जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे जो लोकल लोग हैं इकोनॉमी उनके हाथ में हो। तो ये संभावना है, ये परम पुरुष की कल्पना है और हम पे इस विश्वास करते हैं कि उसमें जब बिचौलिए नहीं रहेंगे, जब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना अपने हाथों में रहेगा, जब लोकल लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा, तो कम से कम विपन्नता जो है वो तो नहीं रहेगी, जो आज की स्थिति में इतना जो अंतर है वो तो नहीं रहेगा। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कोई कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए आज का सब्जेक्ट को भूलना नहीं है ना, कि समाज की एकता, समाज में किस तरह से एकता को प्रतिष्ठित करें। सो दैट इज आवर मेन पॉइंट टू बी डिस्कस। नीतू सिंह दीदी, आई एम श्योर यू कैन स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। नीतू सिंह दीदी, यू आर अवेलेबल? नमस्कार दादा। नमस्कार सभी दीदी। को नमस्कार। दादा, एक्चुअली में जो मैंने तैयार किया है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट को दूसरे पर्सपेक्टिव में समझ पाई। कोई बात नहीं, आप बोलिए ना तो दीदी। क्या मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। अच्छा दादा, what I thought it from the socio-economic perspective, from the, क्योंकि एक अगर आदमी, रिलेशन वही खराब होते हैं जहाँ एक पुअर है एक रिच है। सिमिलरली अगर हमारी जो कंट्रीज हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, वहां भी यही डिफरेंस नजर आ रहा है, वन रिच वन पुअर कंट्री। तो व्हाट द कंट्री हैज टू डू, जब तक वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ऑल्सो, अगर आपका पर मंथ 2 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है और आप सिर्फ 1 बिलियन और हाफ बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन यू आर नॉट एट अ राइट लेवल। आपको इतना तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फाइनेंशियली, हर कंट्री को इतना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके। पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो पे जब हम बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, वर्ल्ड का कोई भी लीडर आता है, यू गिव, दे आल्सो गिव यू रिस्पेक्ट, बट दैट पॉइंट इज ऑलवेज देयर, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री। सिमिलरली यहाँ स्टेट का भी बात है, व्हेन वी स्पीक अबाउट बिहार, व्हेन वी स्पीक अबाउट गुजरात, दैट माइंडसेट इज ऑलवेज डिफरेंट व्हेन वी स्पीक अबाउट टू स्टेट। सो सबसे पहला जो है, मतलब आई नो कि हर एक को स्पिरिचुअलिस्टिक होना चाहिए और न्यू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ही लाइफ चलेगी, दैट आई नो वेरी वेल, बट उससे अगर हम वर्ल्ड की अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, वो सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखना है। सेकेंड थिंग, why we are entertaining those countries who are responsible for the crime like terrorism। आज हम बात करते हैं कि हमास का जो है वो टेररिस्ट हुआ है, पहले हम करते थे पाकिस्तान जो है दैट वाज अ टेररिस्ट। हमने पाकिस्तान को तो पकड़ लिया, हमने हमास को पकड़ लिया, बट वी वर नॉट एबल टू सी हु इज बिहाइंड देम। वहां अगर आप रूट कॉज को पकड़ के बैठेंगे, एंड देन in the world scenario you can say ki America, you are responsible for what is happening right now, then only your word would be listened। आप वहां जाके अगर बोलते कि नहीं पाकिस्तान ने किया है, और बाद में पीछे जो आदमी है उसको नहीं पकड़ोगे, तो बात नहीं बनेगी। तो जितनी ये टेररिज्म फैला है पूरे वर्ल्ड में, देयर इज समबडी बिहाइंड इट, उसको भी पकड़ना पड़ेगा। तीसरी बात, जो सोशली सेम लेवल के कंट्रीज है, लाइक इंडिया की क्या है, दे आर नॉट नाइसली कनेक्टेड विद बांग्लादेश, नीदर विद श्रीलंका। अब तो नेपाल भी एक साइड पर अपनी अपनी बात बोलते हैं, पाकिस्तान तो था ही हमसे अलग, चाइना के साथ वैसे ही दुश्मनी है शुरू से। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिट ऑल टुगेदर, संगठन यहीं से शुरू होना चाहिए। आप यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए, दे क्रिएटेड अ करेंसी यूरो, उनके यहाँ कोई वीजा ही नहीं है,
वहां सारी कंट्री इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है, उनकी आपस में लड़ाई भी नहीं होती, दे डोंट फाइट विद एनीबडी। हमारे यहाँ होती है बिकॉज हम साथ में नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से जो ये G20 में इन्होंने 10,000 कंट्रीज को बुला लिया और अमेरिका को भी खड़ा कर दिया, देयर इज नो नीड ऑफ इट। You call those people who are like-minded, who can genuinely speak on the objective of any forum. Then only any objective can come out. Thank you, Dada. Namaskar. Absolutely, Didi. You rightly said that knowingly when today the situation is such across the world, that world is divided on many fronts. So people support each other, not looking at their fault, but looking at their political advantage, which is not acceptable, but it is today. And that is why you see the differences in opinion. For example, बहुत आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया यूरोप का। 1940s, if I remember, there were slaughters very purposely. I mean, Yugoslavia, Poland, and then Ukraine, Lithuania. But later what they did is they consciously decision took that history is history. We want to make the future together. I mean, this is the approach. You can very well understand this Germany. Germany was divided in East and West Germany. Once they united, they focus right from the childhood that they will not talk that, I mean, they're very open that those mistakes we are not going to repeat. We have to make a brighter future. So this kind of psychology, unless prevails, उसको कहते हैं ना कि जब तक आत्मग्लानि नहीं हो तब तक इम्प्रूवमेंट को कोई चांस नहीं रहते हैं। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। एंड मैं एक और बात बोल रहा था कि अपने इस पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनकम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द कंट्री डू नॉट थिंक इन रैशनल वे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दे फॉर्मुलेट प्लान्स दैट नीदर रिमूव सोशल इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, जो आप बात कर रही थी, and neither is increases the collective wealth. So these leaders have committed major blunder by what you call placing the cart before the horse, जिसको हम कहते हैं गाड़ी के आगे घोड़े को खड़े कर दो। So the all countries of the world, if you see, economically deprived people can be united through a common program of socio-economical struggle, and by fighting against cruel capitalist exploitation on the one hand, and by the implementing developmental programs to enhance the amount of collective wealth, or on the other hand, self-sufficient socio-economic zones should be established throughout the world to smoothly eliminate social disparity and increase collective wealth. Because unless this asti, the very existence of the people, is guaranteed, the bhati comes later, the mental expansion comes later, and which is and this is the reason, without mind, when people are fighting against each other, most of the wars are either because of the geo sentiment, or because of the socio sentiment, or because of the socio-economic problems. So may I request anybody to speak on the subject, please? Anybody want to say something? So, Dada, if we, we are trying to address this problem of division of the humanity. So, how do we know? We are kind of, already divided into so many segments, basis of the religion, language, countries, and nations. But if we try to get into the root cause of this problem, we start identifying wherever we are born, so दादा मैं ये बोल रहा था, जैसे हम जब पैदा होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई भी जो मतलब डिवीजन आता है, कहीं ना कहीं मतलब या तो हमारे अंदर सोसाइटी डालती है, या इवन पेरेंट्स डालेंगे, या फिर हमारा एजुकेशन का सिस्टम या रिलीजन का सिस्टम है। जब हम पैदा होते हैं तब हम काइंड ऑफ ब्लैंक होते हैं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड। इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कोई बायस आता है हमारे यहाँ पे, और वो बायस भी लोगों के एक्सपीरियंस से, हमारे घर वालों के एक्सपीरियंस से होता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस एक्चुअली, मतलब जिसकी वजह से मतलब हमारे अंदर मतलब एक इनसिक्योरिटीज भी आती हैं,
और हम मतलब मे बी अंदर से डिवाइड होने लग जाते हैं दूसरे रिलीजन की ओर, या दूसरे किसी कास्ट की ओर हो गया, या दूसरे नेशन की ओर हो गया। तो हमारे को मतलब जो मुझे लगता है कि अगर हम इसकी रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो जैसे मैं अगर सोचूं, जैसे मतलब कोई हम इंडियन है, या हम कोई रिलीजन ले लें किसी के नाम पे, तो ये सारे एक लेबल्स, मतलब देखा जाए तो जो सच, मतलब मुझे लगता है कई बार कि हम शायद सच को नहीं जी रहे, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक ह्यूमन ने ही डेवलप करी है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। और ये जो शब्द है, मतलब ये शब्द ही हैं सारे, मतलब जो हम भारत भी एक नाम है, हिंदू भी एक, मतलब देख सोचा जाए तो एक नाम है। तो ये हमने लैंग्वेज डेवलप करी थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, वेलफेयर के लिए करी थी। लेबलिंग करके हम मतलब एक सिस्टम बनाया हमने, जिससे हम मतलब सॉल्यूशंस बना सकें, या फर्दर आगे हमने उसके ऊपर लेयर बाय लेयर काम चल रहा है, आई गेस मुझे ये लगता है। पहले लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके ऊपर और चीजें डेवलप हुई हैं। तो हम खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब दिस इज जस्ट अ सिस्टम जो भी ह्यूमन ने बनाया, मे बी दिस इज नॉट गॉड मेड सिस्टम। हमारे को मतलब ये सच जानने की जरूरत है कि मतलब जो हम जी रहे हैं मे बी वो सच नहीं है। इसलिए और ये लोगों में मतलब कई बार क्या है कि भी हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट आ जाता है कि रिलीजन में हमारे को जो सिखाया जाता है कि हाँ यही सच है, और उसको हम छोड़ते नहीं है, उससे हम डरते भी हैं छोड़ने से। तो इससे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, हमारे को लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर एक मतलब इन्फॉर्मेशन, जैसे कांटा चुभता है, उसको निकालने के लिए हमें दूसरे कांटे का ही इस्तेमाल करके हम कांटा निकाल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन भी कांटे की तरह चली जाती है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है अंदर, उसको हम सही जानकारी से निकाल सकते हैं ज्यादा बाहर। और सही जानकारी से बाहर निकालने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन सही पहुंचानी पड़ेगी। मतलब मैं ये देखता हूँ कि हमारे मतलब प्राउड में काफी सारे मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हम लोग देखें, मतलब किसी एक चीज को पकड़ें और उसको एक अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी, जैसे जो भी मतलब लगा लो इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, कि किसी चीज को कितना हम, कई बार होता है कि हमने जस्ट रिसेंट के मतलब 50 इयर्स बैक तक का हमने पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च करा और वहां तक ही करा। वी शुड मतलब हमारे को पूरा का पूरा रूट कोर्स में जाना चाहिए कि कहाँ से इनिशियली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जैसे हमारे इंडिया में ही है, पहले आर्यंस थे, मतलब मैंने बुक में ही पढ़ा था, बाबा वाली बुक में। तो आर्यंस थे, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम हुए, फिर मतलब बौद्ध धर्म था उससे पहले। तो बहुत सारी मतलब इसी तरीके से हमारे अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई हैं, रिलीजन भी डेवलप हुए हैं। हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और उसी को सच मान लिया, जबकि वो सच है ही नहीं। और सच को जीना जरूरी है लोगों को। अगर हम प्रॉपर मतलब एक होता है ना, मतलब जैसे समझाएं कि क्या गलत हो चुका है, कहाँ से हमारे को क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन तो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। अगर पूरी दुनिया मेडिटेशन भी करने लग जाए, चाहे 5 मिनट ही करे, तो मे बी हम जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम सेल्फ करेक्शन वाले मोड में चले जाते हैं। और एक वो बहुत अच्छा सोल्यूशन लगता है मुझे। उसके लिए हमको सभी को, मेडिटेशन में ऐसा है कि इसका कोई किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, या दूसरे रिलीजन्स को, या किसी और जो भी कंट्रीज है उनको कर सकते हैं कि मेडिटेशन को प्रैक्टिस को लाया जाए सभी में, उससे किसी का नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही होगा अगर कुछ और नहीं होगा तो। अगर ये आ जाए तो भी हम इससे सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी इंफॉर्मेशन से ही निकलेगा, जितना हम अवेयर करेंगे, जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे अच्छे से रिसर्च करके, तो शायद हम यूनाइट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज को हम फाइंड आउट करें, इंस्टेड ऑफ डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करने की बजाय सिमिलैरिटीज को आगे लाएं राइट, वेरी कि गुड। कैसे कैसे किया जा सकता है। यही है, बाकी थैंक यू सो मच। बाबा भी यही कहते हैं दादा, दैट वी हैव टू सी द कॉमन पॉइंट्स। जो सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं वे रिलीजन को लेकर के होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो बिहाइंड में आप जाइएगा, 4000 पहले की हिस्ट्री है। ये लोग हमेशा झगड़ते रहे हैं। जिस तरह से भारत के जो सो कॉल्ड हिंदू जो धर्म है, यहाँ से जैसे बुद्ध निकला, जैन निकला, सिखिज्म निकला, इसी तरह से जो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, इन सब का उत्स एक ही है, वो है जेरूसलम और उसके आसपास मक्का मदीना। और इनको जब आप बहुत अंदर जाते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कल इन पे मैंने 4 घंटा स्टडी किया। तो जो कारण है जो आपने बोला कि वी हैव टू लुक एट द कॉमन पॉइंट्स, मेरे को कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात मैं कहना चाह रहा हूं
क्योंकि जो सांप्रदायिक हिंसा होते हैं या वार होते हैं या झगड़े होते हैं या आध्यात्मिकता की समझ के अभाव के कारण लोग रेपर्स पे लड़ाई करते हैं। जल्दी खत्म करो। ओके, श्योर श्योर दादा, है ना। तो जैसे हालांकि जब आप कोर में जाइएगा, सो द एंटायर कोर स्पीक्स ऑफ द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब समय नहीं है, वी विल डिस्कस समटाइम्स। अब जैसे कि बाइबल्स में कहा जाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी, शुरुआत और अंत हूं। सूफी लोग कहते हैं कि उन अल हक, अनल हक, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, है ना, जो हमारा वेदांत भी कहता है। तो इस तरह की जो कॉमन चीजें हैं, एंड चूंकि मैं इतना बोल दिया तो मैं चाहता हूं मैं ये भी बोल दूं, कुरान की जो एक बात है उसको कहते हैं बल अव्वल, वह प्रथम है, उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। बुवल अव्वल, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और इसके बाद बोलते हैं अव्वल अव्वल, स्पष्ट रूप से जो कुछ दिखता है वह वही है, अव्वल बातीन, जो नहीं दिखता है वह भी वही है ना। बहुआ वकल्लई सई अमीन, है ना, मतलब जो सब कुछ को देखता है, सब कुछ जानता है, वही है वह। तो ये इसमें आपको बिल्कुल दिखेगा कि जो सर्वज्ञ है वो परम पुरुष का वर्णन वैसे ही करता है जैसे कि बाइबल करता है, जैसे कि सूफी लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो ये जो कोर में जब जाएंगे, चाहे वो वेदांत हो या कुछ भी हो, तो आप पाएंगे कि जो छिलके पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब किस विधि से हम विधियों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कोर इज द सेम। सो ये जो आप बात सही है कि अज्ञानतावश या आध्यात्मिकता की समझ के अभाव के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कॉमन फैक्टर पे यदि हम लोग जोर देते हैं तो ये यूनिटी आसानी से बनाई जा सकती है समाज में हर क्षेत्र में। वर्षा जी, इफ यू वांट टू से समथिंग, योर हैंड इज रेज्ड। नमस्कार दादाजी। नमस्कार दीदी। हाँ नमस्कार दादाजी। नमस्कार दीदी, नमस्कार। हाँ हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि बाबा ने सब कुछ दे दिया है और हम लोगों को बस केवल लोगों को प्राउड के बारे में बताना है, और कम से कम ये संकल्प ले लें कि 10 लोगों को प्राउड से जोड़ेंगे और उनको बताएंगे। तो यदि उनके दिमाग में ये बात हमने बैठा दी तो निश्चित ही है कि एक व्यक्ति यदि 10 को जागरूक करेगा तो कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस आएगी ही, है ना। बस वेरी गुड दीदी, थैंक यू दीदी। आपने तो बाबा की बात ही कह दी। उन्होंने कहा कि यदि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो एक एक व्यक्ति को बता दो कि प्रभुत्व का मकसद क्या है या आनंद मार्ग का मकसद क्या है, ताकि वो ये ना कहे कि हम नहीं जानते कि आनंद मार्ग क्या Absolutely। है। और ये हमारा ड्यूटी भी है। जो लोग गलत कर रहे हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले, हमने क्या उनको समझाया है? सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। यस, सूरज प्रकाश दादा, इफ यू वांट टू से समथिंग। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर एक घर में, हर एक फैमिली, छोटी है या बड़ी है, सब में एक तो संघर्ष है कि मैं सबसे बड़ा। वो जहां तक हम घर में सुधार नहीं होगा तो सुधार कहीं नहीं होगा। चैरिटी बिगिन एट होम। राइट, थैंक यू। थैंक यू दादा। मैं अंत में सत्यासानंद दादाजी, हमारे एसजी दादा दिख रहे हैं, यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो नमस्कार दादा, और आप एंड में संबोधन कर दें और कंक्लूड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट करें दादा अपने आप को, आप म्यूटेड हैं। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार दादाजी। प्रारंभ से अब तक राजेंद्र दादा को, पूनम दीदी को, मीरा दीदी को, मितू दीदी को, पंकज जी को और कई लोग इसमें बोलते रहे, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। और ये जो विषय है कि मानव समाज को कैसे एकताबद्ध किया जाए, कैसे इसको एक सूत्र में बांध कर रखा जाए, तो इसके लिए बाबा के डिफरेंट डिस्कोर्सेस हैं। ये 1 घंटे या 1.5 घंटे के डिस्कशन में आप उसके पावर पॉइंट की चर्चा कर सकते हैं
जब एलोबरेशन की बात आएगी तो आपके पास ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ये डिबेट है। कई लोगों को हमने यहाँ पर यह भी देखा कि उनके अंदर एक दुख है कि भाई हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, बाहर की संगठन की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को संगठित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जहां हैं वो वहीं संगठित नहीं है। तो बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें कुछ बातें अभी सूट कर सकता है, कुछ बातें आपको बाद में सूट करेगी, कुछ बातें और बाद में सूट करेगी। बाबा कहते हैं कि समाज में, समाज के विभाजन का, डिसयूनिटी का जो सबसे पहला कारण है, ये डिस्पैरिटी इन फिजिकल एस्पेयर, भौतिक स्तर में जो विषमता है, ये सबसे पहला कारण है, क्योंकि यह एक कॉमन चीज है। इस कॉमन चीज से आप नकार नहीं सकते। अगर आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके राज्य में, आपके देश में और इस पूरे दुनिया में आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति कोई अति सुख सुविधाओं को पा रहा है और कोई भूख के लिए, रोटी के लिए तरस रहा है, भूख में जी रहा है, तो यूनिटी नहीं रह सकती है, यूनिटी का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात कि ये अभिव्यक्ति का अधिकार, समाज में आप देखेंगे कि कई जगह आदमी के पास भौतिक चीजें हैं, लेकिन वहां पर अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, अभिव्यक्त करने नहीं दिया जा रहा है। एक आदमी का दबदबा है, एक आदमी को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। वैसी परिस्थिति में भी यूनिटी खत्म होती है। कॉमन आइडियोलॉजी के अभाव में यूनिटी खत्म होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिनका संस्कार ऐसा है कि वो समाज के बने हुए नियमों को अगर नहीं तोड़ दें तो लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। वो बने हुए श्रृंखलाओं को तोड़ते हैं, अनुशासन को नहीं मानना चाहते हैं। तो बड़े परिव्यू में आप देखेंगे तो समाज को संगठित करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्तर के कष्ट को तो दूर करना होगा। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में बहुत ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन वो दुनिया के साथ, दुनिया के लिए उसका आचरण कैसा है वह सामने नजर आता है। वह चाहता है कि दुनिया लड़े, मेरा हथियार बिके। वो चाहता है कि दुनिया लड़े कि हमारी पूछ हो। तो सबसे जो बड़ी बात है, बीच में एक किसी दीदी ने कहा था कि इन सारी समस्याओं का समाधान तो नव मानवतावाद में निहित है। नव मानवतावाद समाज के डिवीजन के एक एक पक्ष को कहता है। जियो सेंटिमेंट के कारण कैसे समाज बटा, कास्ट सेंटिमेंट के कारण कैसे समाज बटा, लैंग्वेज के कारण कैसे बटा, नेशनल सेंटिमेंट के कारण कैसे बटा, ह्यूमन सेंटिमेंट के कारण कैसे बटा, और लास्ट में ये जो न्यू ह्यूमनिज्म है, इसको जब तक स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक आप इस समाज को इकट्ठे नहीं ला सकते हैं, एक जगह नहीं ला सकते हैं। और एक जगह लाने का कभी यह मतलब नहीं है कि 100%, जिस दिन समाज में 51% आदमी एक जगह हो गया, वहां समझना होगा कि आज समाज इकट्ठा हो गया है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 100% लोग हो जाएंगे, 95% लोग हो जाएंगे। ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये बनी रहेगी, विद्या अविद्या का खेल चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर विद्या का डोमिनेशन हो जाए, इस बात के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वह है स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट एक्सेप्ट करना होगा। स्पिरिचुअलिटी एज ए एसेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जिस दिन इस बात को पूरी दुनिया का लोग स्वीकार कर लेगा, उसी दिन जाकर आप एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक अविभाज्य समाज की जो कल्पना है, उस समाज को ला सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है और आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कुछ लोग निराश हताश हैं। आप देखिए, सोच कर देखिए कि आज अगर कहीं अपने परिवार में बट गया है तो वहां क्या कारण है? अनुशासनहीनता बहुत बड़ी चीज नजर आती है। I think his mobile may not be charged enough or data is over, something like that. So anyway, जब तक दादा जुड़ते हैं तो दादा ने एक बात कही थी कि ये जो सब्जेक्ट हम लोग चुने, we have chosen the subject which is Madhusudan Dada also told that it is a very vast subject, and for that we have started Monday to Friday study circle classes जो कि अभी स्टार्ट हैं, हर मंडे टू फ्राइडे तक होते हैं। टाइम सेम है 8:30 PM एवरी डे। एंड देन इसी में एक डिस्कशन में पॉइंट आएगा, हाउ टू यूनाइट द ह्यूमन सोसाइटी, दैट मे एग्जिस्ट फॉर 4-5 डेज, और वहां पर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। और जैसा कि बहुत आप में से लोगों ने बोला कि क्रांति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, दर्शक आश्चर्यचकित हो सकते हैं और आपके लिए तालियां भी बजा सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्रांति लाना बिल्कुल ही आसान नहीं है। जो क्षत्रिय या विप्र विचार वाले शूद्र क्रांति के अग्रदूत हैं, उन्हें अनुशासित रहना सीखना होगा, उचित क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेना होगा, अपने चरित्र का निर्माण करना होगा। जैसे किसी दीदी ने कहा, नैतिकवादी बनना होगा। एक शब्द में उन्हें वह बनना होगा जिसे बाबा सद्विप्र कहते हैं। एक सद्विप्र ईमानदार लोगों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएगा, भले ही वह उन्हें पसंद न करता हो, लेकिन एक सद्विप्र बेईमान लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, भले ही वह उन्हें पसंद करता हो। तो ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की मानसिक कमजोरी लाना उचित नहीं होगी। ऐसे कठोर वैचारिक सद्विप्र ही क्रांति के अग्रदूत होंगे। वे क्रांति का संदेश दुनिया के घर घर में फैलाएंगे, जैसे हमारी किसी बहन ने आज बात को कहा, और मानव अस्तित्व की हर नस और कोशिका तक पहुंचाएंगे। विजयी क्रांति का झंडा वे ही उठाएंगे। सो विद दीज वर्ड्स, विद योर परमिशन, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन टुडे बिकॉज कल का अनाउंसमेंट कर दीजिए GPIF का। यस, कल हमारा GPIF गर्ल प्राउटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का क्लास सेम 8:30 बजे से है। हर संडे को हुआ करेगा 8:30 बजे। ये क्लासेस का टाइमिंग हम लोग इसलिए शिफ्ट किए हैं कि मंडे से फ्राइडे स्टडी सर्कल चल रहा है, काफी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, आप लोग भी भाग लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। कल 8:30 बजे, रविवार शाम को 8:30 बजे से गर्ल्स प्राउटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का सेशन है कल, और उसका लिंक आपको कल सुबह भेज दिया जाएगा, आज रात को ही भेज दादा लोग भी आमंत्रित हैं। या दादा दीदी सभी ऑल आर invited to attend that session. Thank you, Didi. Thank you so much. Namaskar.